Friends, welcome to our YouTube channel, official YouTube channel, Uma Bajanti Public School. Dear students, today we are going to learn about phrases, clauses, and sentences. It is the very first topic of your grammar from class 6th and 7th. First about phrases. Let us see. Here is as in a corner and in the field. So what we'll see here? In a corner it is a group of words, but it does not have any complete sense. Same for the next. In the field, it is also a group of words, but it does not have a complete sense. So we can say a group of words that does not have complete sense is called phrase. So once again, in a corner and in the field, here are two incomplete senses of tense. In first, we can see it is a group of words in a corner, but it does not have any complete sense. While about the same in the field, it is also a group of words, but it does not have any complete of senses. As here are some examples. The farmer is in the field. It is the same statement in complete sense, but what we have underlined in the field, it is in complete sense. Now second, we are returning from Agra. Here is Agra. From Agra. It is also a group of words, but it does not have any complete sense. Means of that, phrases, a group of words that does not have any complete of sense is called phrase. While about the same thing, clause. Clause is here. As it is your second topic, clause. Look here. I have a chain of gold. Once again, I have a chain of gold. Now we have to explain about this statement. Just look at that. Here is a chain of gold. It is also a group of words. It is also a group of words, but it does not have any complete options. Now we have to complete it. I have a chain that is made of gold. Now, this incomplete statement has been converted into complete sense. What is a complete sense and incomplete sense? A complete sense
that consists a subject and a verb and an object. But while about incomplete sense, it consists only an object or any other words. So definition will be a group of words that does not have complete sense but it consists a subject, verb and object. This is our clause, and in other hand we can say a clause is a part of sentence that does not have complete sense but it contains single subject, verb and object also. It is related to relative pronoun or relative adverbs also. This is the very first example of clause. As we can see here, it is the first clause. I have a chain. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसमें दिखाया गया है कि I have a chain made of gold. मैंने क्या आपको बताया कि मेरे पास एक चेन है जो सोने से बनी है, लेकिन ऊपर के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि वही सेंस है बट हमने उसका दूसरा क्लास नहीं तैयार किया. आपने देखा आई है, मेरे पास है, अ चेन एक जंजीर ऑफ गोल्ड सोने की, मतलब मेरे पास एक सोने की जंजीर है. सोने की जंजीर है मतलब वह सोने से बनी है. तो मैंने उसको कंप्लीट सेंस में लिखा कि दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब वह सोने से बनी है, वह उसका कंप्लीट सेंस है. आप एक एग्जांपल और ले लीजिए. द हंटर hunts the lion for his living. मीन्स जो हंटर है, शिकारी, वह अपने जीवन यापन के लिए शेर का शिकार करता है. हम यहां क्या देख रहे हैं? द हंटर शिकारी शिकार करता है, द लॉयन शेर का, फॉर हिज लिविंग. आप यहां से इसको देख सकते हैं, कह सकते हैं कि यह फ्रेज है, शॉर्ट फ्रेज है. हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फ्रेज एंड क्लॉज में. यह फ्रेज है लेकिन हम इसको कंप्लीट सेंस में बदल करके एक दूसरा स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं रहेगा. कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं रहेगा, जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ा होगा. मीन्स हियर इज द हंटर hunts the lion. It is our complete statement but it is phrase. जैसा कि हमने देखा कि हमारा फ्रेज ही है. अब हमें इसी स्टेटमेंट को कंप्लीट सेंस में रखना है. देखिए, दैट्स व्हाई, ये हमारा एक रिलेटिंग वर्ड बना जो दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है. दैट्स व्हाई द हंटर हंट्स द लायन, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू लिव. ही मीन्स हंटर, ही वांट्स टू लिव. ये हमारा एक क्लॉज तैयार हुआ. क्लॉज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्लॉज क्या है. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. Clause is a part of sentence that does not have complete sense.
सेंस, उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं रहेगी, वह सिर्फ एक पार्ट है। जो क्लॉज है वह किसी भी सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। आप यहां देख सकते हैं कि हमने दो क्लॉज तैयार किया है। द हंटर हंट्स द लायन, इट्स आवर फर्स्ट पार्ट, एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स टू लिव, जिसके कारण वह जीवित रहना चाहता है, यह हमारा सेकेंड पार्ट है। और यही हमारा क्लास है। क्लास एंड फ्रेज में इतना डिफरेंट है कि जो फ्रेज है वह सिर्फ एक शब्दों का समूह होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई मेन वर्ब नहीं होता है, जबकि क्लॉज में यह होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। दोनों में अंतर यही है। वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट फ्रेज एंड क्लास। What are the differences between phrase and class? So once again, let's start. Here are phrases, some phrases, and here are some clauses. As you are told already, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो फ्रेज है वह शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ना तो कोई डूअर होता है, ना कोई वर्ब होता है। In an abbreviation we can see as a group of words. Such as in a corner, in the chair, while about class, it is a part of sentence that does not have complete sense, but it contains a subject, a verb and object. आपने देखा भी है कि फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई डूअर नहीं है, सिर्फ यह शब्दों का एक समूह है। आपने यहां भी देखा, जबकि क्लॉज में मैंने आपको बताया कि जो क्लॉज है वह सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा भाग होता है किसी भी सेंटेंस का, लेकिन उस भाग में जो पार्ट हम बना रहे हैं सेंटेंस का, उस पार्ट में एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। यह कंपल्सरी है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे I saw the man who was flying kite. So please look here. I saw the man who was flying kite. हमने देखा, यह हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक स्टेटमेंट, यह कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन हम इसको पार्ट कर रहे हैं तो यहां पर हमें दो पार्ट मिला है। I saw the man, नेक्स्ट इज who was flying kite, जो पतंग उड़ा रहा था। हमारा सेकेंड पार्ट है who was flying kite, जो पतंग उड़ा रहा था। who was flying kite, पतंग उड़ाने वाला कौन है? the man. The man is the doer of second part, second statement, second clause. आपने देखा कि जो द मैन है वह सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट है, डूअर है, जबकि उसकी जगह पर हमने यूज किया है हु। यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन को हम इंडिकेट कर रहे हैं आरपी से। आरपी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो हमने द मैन की जगह पर हु लिखा है और हु को एज ए डूअर मान करके सेकेंड स्टेटमेंट को जोड़ दिया है, जो कि हमारा ये एससी है। एससी मीन सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब उसके पार्ट को मैं बताऊंगा या उसके टाइप को बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो क्लॉज है वह किसी एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यहां सब्जेक्ट द मैन तो पहले सेंटेंस का, ये पहले पार्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करें हु वॉज फ्लाइंग काइट, पतंग कौन उड़ा रहा था, तो हमें आंसर मिलेगा द मैन। द मैन इज द डूअर ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट, कि जो हमारा जो द मैन है
वह हमारे दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। इसलिए आपका ये जो सेकंड पार्ट तैयार हुआ है उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक क्लॉज जो होता है वह सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब हम कुछ और भी चीजों को पढ़ते हैं जिसमें कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेज में नो सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, नो वर्ब, कोई वर्ब नहीं होगा, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब भी होगा, बट ये जो स्टेटमेंट होगा किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ा होगा। इट इज आवर क्लॉज। नाउ टाइप ऑफ क्लॉज। अब फ्रेजेस के कोई भी टाइप तो हैं बट आपको आगे जाकर के मिलेंगे ये, लेकिन सबसे पहले क्लॉज के टाइप्स। स्पेशली क्लॉजेस को हायर स्टैंडर्ड के लिए रख दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसके टाइप्स को देखेंगे। There are 3 types of clauses. Number first is principal clause. First is principal clause. Second is subordinate clause. And third is coordinate clause. First is principal clause, second is subordinate clause, and third is coordinate clause. Means of that clauses can be classified into 3 types. Number first is principal clause, second is subordinate clause, and third coordinate clause. So first principal clause. What is principal clause? It is the very important type of clauses. First principal clause, because without any principal clause we cannot make any type of subordinate clause and any type of coordinate clause. First principal clause, such as it is a main clause. What is that? It is a main clause. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वह एक मेन क्लॉज होता है एंड इट डज नॉट डिपेंड on any other clauses. जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वह किसी भी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। अब डिपेंड की बात आ गई तो डिपेंड का मतलब यह होता है कि दो क्लॉजेस के बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आएगा दो क्लॉजेस के बीच में। हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वह एक मेन क्लॉज होता है और वह किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप स्टेटमेंट पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे कि टेंस क्या है। टेंस में हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि एक सिंपल सेंटेंस में, जैसे हम लिखते हैं कि राम गोज टू स्कूल। एग्जांपल, राम गोज टू स्कूल। इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, हम इसको पार्ट नहीं कर सकते।
बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इनकम्प्लीशंस। हमें हमारे पास कोई दूसरा वाई के जोड़ने के लिए नहीं। लेकिन हम इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, राम इज अ डूअर, हियर इज गोज वर्ब एंड टू स्कूल इट्स अदर वर्ड। जबकि हमें क्या चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लास होता है वह एक मेन क्लास होता है, वह किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं। किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होने का मतलब सीधा हो गया कि हमारे पास प्रिंसिपल क्लास के साथ कोई दूसरा क्लॉज आना चाहिए। लेकिन अगर सिंगल क्लॉज है, सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल सेंटेंस है, तो हमारा वो प्रिंसिपल ही, यही हमारा मेन सॉरी ये हमारा मेन स्टेटमेंट। हम इसमें कहीं पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज को मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं कि he says that Ram goes to school। अब देखिए यहां जरा, आपने ये देखा he says, हम दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंशिएट करेंगे। राम गोज टू स्कूल इट्स ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है जिसका सब्जेक्ट है राम, वर्ब गोज एंड टू स्कूल अदर वर्ड। जबकि हम सेकेंड स्टेटमेंट में देख रहे हैं he says एंड राम गोज टू स्कूल। हियर आर टू स्टेटमेंट्स, यहां दो स्टेटमेंट्स हैं, he says and Ram goes to school, but both are joined with a conjunction। ध्यान से देखिए, यह एक कंजक्शन से जुड़ा है, कंजक्शन से जुड़ा है, और ये स्टेटमेंट फ्री है। आई मीन यही हमारा मेन क्लास है, जबकि ये क्लॉज जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे ये प्रिंसिपल क्लास है और सबऑर्डिनेट क्लास है। तो मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूं कि हम कैसे प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है वह हमेशा किसी न किसी कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिए, राम गोज टू स्कूल, उसके पहले दैट आया है, मतलब राम गोज टू स्कूल जुड़ा हुआ है दैट से, यही हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। तब हम इसको जोड़ देंगे राम के साथ, मीन्स ये स्टेटमेंट हो गया दैट राम गोज टू स्कूल, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। आगे आपको सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में भी बताएंगे। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्लास के बारे में, यह हमारा रहा प्रिंसिपल क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लास एक मेन क्लास होता है, यह किसी भी क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। हमारा यहाँ ये जो स्टेटमेंट है यह हमारा प्रिंसिपल क्लास है, एंड वी कैन अंडरस्टूड इट बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीसी। हम इसको पीसी भी कर सकते हैं। यह हमारा प्रिंसिपल क्लास है, एंड दैट राम गोज टू स्कूल, it is our subordinate class because this statement, I mean this class depends on he says। प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड करता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। मैं आपको एक दो और एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं। ये देखिए, जैसे मैं इसको इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूं कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास के बीच में कोई कंजक्शन आता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास है वह किसी न किसी कंजक्शन के साथ जरूर आएगा, इट्स श्योर। एग्जांपल और देखते हैं। इफ ही कम्स हियर, I shall teach him। So let's find the principal class and subordinate class। चलिए हम लोग प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास खोजते हैं समझने के लिए। देखिए, जैसे कि पहले हम ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पार्ट है, ये भी हमारा एक पार्ट है,
अभी हम समझ नहीं सकते कि हमारा प्रिंसिपल क्लास क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी क्लास जब कंजक्शन से जुड़ करके आता है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई क्लास किसी कंजक्शन से जुड़ करके आता है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो जाता है। ये देखिए, ही कम्स हियर के पहले क्या आया है, इफ इज आवर कंजक्शन। अब ये जब हमारा कंजक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा होगा। आप इसी को यहां से ऐड कर दीजिए, यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, एससी सबऑर्डिनेट क्लास। और जो आपका क्लास बचा जिसमें कि कोई कंजक्शन नहीं है, वहां पर एक सब्जेक्ट है और उसका मेन स्टेटमेंट है, मेन वर्ब है, आई हियर्स डूअर, शैल टीच इज वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। ये हमारा पीसी है। ये देखिए, इसके साथ कोई भी कंजक्शन नहीं आया, न तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया, न कोई रिलेटिव एडवर्ब। सो आई होप यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट सबऑर्डिनेट क्लास एंड प्रिंसिपल क्लास। नाउ सेकेंड इज सबऑर्डिनेट क्लास। अब हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। आपको आधा वैसे ही बताया जा चुका है सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। हम सेकेंड पढ़ेंगे, हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रिंसिपल क्लास के बाद सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास, जैसा कि हम प्रिंसिपल क्लास के बारे में पढ़ ही चुके कि हमारा प्रिंसिपल क्लास जो है वह एक मेन क्लास होता है जो सबऑर्डिनेट, जो किसी भी क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेट क्लास की बात करते हैं तो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, यही डिफरेंट है प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास में कि जो प्रिंसिपल क्लास होता है वह इंडिपेंडेंट क्लास होता है, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो डिपेंडेंट क्लास होता है। जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है। लेकिन एक क्वेश्चन ये, अगर ये डिपेंडेंट क्लास है तो किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड रहता है ना, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लास। इसके पहले जब मैं प्रिंसिपल क्लास आपको बता रहा था तो आपको उसमें बताया था कि प्रिंसिपल क्लास किसी भी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा डिपेंड होता है अपने प्रिंसिपल क्लास। यहां भी मैंने वही बताया कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो एक डिपेंडेंट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास एक डिपेंडेंट क्लास है जो डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लास पर। और इसके पहले आपको और भी बताया गया कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो किसी न किसी कंजक्शन या किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ा रहता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास है वह किसी कंजक्शन से जुड़ करके आएगा, यस श्योर। और जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा प्रिंसिपल क्लास, जो हमारा प्रिंसिपल क्लास रहेगा वह या तो सबऑर्डिनेट क्लास के पहले आएगा या सबऑर्डिनेट क्लास के बाद आएगा, लेकिन यह किसी कंजक्शन से जुड़ा नहीं होगा। आपको प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास में अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लास है वह हमेशा किसी न किसी कंजक्शन के साथ जुड़ करके आएगा और प्रिंसिपल क्लास किसी भी कंजक्शन से जुड़ करके नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं आपको यहां कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। फिर से एक बार फाइंड आउट करते हैं कि हम प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। He said that they were playing hockey। अगर हम एक स्टेटमेंट लिखते सिर्फ एक, या हम इसको लिखें या इस स्टेटमेंट को लिखें, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट लिखते तो हमारा दोनों प्रिंसिपल क्लास था। आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, इसके पहले के स्टेटमेंट में मैंने लिखा था राम गोज टू स्कूल
वह स्टेटमेंट सिंगल था तो हमारा प्रिंसिपल क्लास था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको कंजक्शन से ऐड किया वह हमारा सबऑर्डिनेट क्लास बन गया। उसके पहले मैंने ऐड कर दिया था ही से, जो हमारा प्रिंसिपल क्लास। सेम वही स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को कहूं, इस पार्ट को लिखूं कि ये हमारा कौन सा क्लास होगा, तो हमारा आंसर होगा कि अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दैट दे वर प्लेइंग हॉकी, दैट दे वर प्लेइंग हॉकी, अगर मैं कहूं कि दैट दे वर प्लेइंग हॉकी, यहां दैट जो हमारा कंजक्शन है वो हमारे एक स्टेटमेंट से जुड़ गया, मींस वह स्टेटमेंट अब कन्वर्ट हो गया प्रिंसिपल क्लास से सबऑर्डिनेट क्लास में। अब ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, मीन्स यही हमारा मेन क्लास हो गया, और हमारा ये जो मेन क्लास है यही हमारा प्रिंसिपल क्लास है। आपके दिमाग में एक और बात, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हम ही सेट के साथ क्या दैट नहीं जोड़ सकते? ध्यान रखना बेटा, जो कंजक्शन है वह हमेशा क्लास के पहले आता है, क्लास के बाद नहीं। ही सेड दैट, ये कोई स्टेटमेंट नहीं। दैट ही सेड ये स्टेटमेंट हो सकता है, आप यहां दैट रख सकते हैं, दैट ही सेड, लेकिन जैसे ही आपने दैट ही सेड कहा वैसे ही वो सबऑर्डिनेट क्लास बना, तब ये आपका मेन क्लास बन जाएगा। आपको सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए कंजक्शन को उसके पहले रखना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास में डिफरेंसेस। अब सबऑर्डिनेट क्लास को क्लेरिफाई करने के लिए, उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें उसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। जैसे सबऑर्डिनेट क्लास के टाइप को समझने के लिए हमें यह देखना है कि हम उसमें जितने भी कंजक्शंस हैं, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, सब समझ लेंगे। सबऑर्डिनेट क्लासेस, पहले आपको मैं कुछ बता देना चाहूंगा एक्स्ट्रा, कुछ अलग से, कि आप कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको, लेकिन थोड़ा टाइप लिख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को बांटा गया 3 टाइप में। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकेंड इज एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो रिलेटिंग वर्ड होता है उसमें एक एडवर्ब क्लास भी होता है, आई मीन एडवर्ब रिलेशन होता है, आई मीन रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो जो भी रिलेशन होगा वो यहां से होगा। और फिर मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आपको नाउन का डेफिनेशन तो पता ही होगा, प्रोनाउन का भी डेफिनेशन पता होगा। जैसे नाउन इज द थिंग, और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सेम फॉर नाउन, सॉरी प्रोनाउन, हम प्रोनाउन के लिए भी वही यूज करते हैं कि प्रोनाउन क्या है, नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला शब्द ही सर्वनाम है, प्रोनाउन। अब हम नाउन की जगह पर जो यूज करेंगे वो हमारा प्रोनाउन है, लेकिन यहां मैं क्लॉज की बात कर रहा हूं, हम लोग क्लॉज की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट नाउन, नॉट अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। मैं नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में नहीं, बल्कि नाउन क्लॉज के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज के बारे में। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, हम लोग क्लॉज पढ़ रहे हैं। नाउन मीन्स राम, श्याम, स्कूल, ये सब हमारे नाउन है, ये सब वर्ड है, ये सब के सब वर्ड है, ये क्लॉज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एंड अदर देन एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लॉज में ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। ये हमारे 3 टाइप सबऑर्डिनेट क्लास के, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास क्या है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। नाउन क्लास always performs the function of noun.
noun class performs the function of noun. While about adjective class, an adjective class performs the function of adjective. And about adverb class, it performs the function of adverb. Function. There are 5 functions of noun class. बेटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाउन के 5 टाइप होते हैं. नाउन क्लास जो होता है, नाउन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाउन के 5 टाइप होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट. बट फंक्शंस अलग होते हैं, क्योंकि ये जो नाउन होता है एज ए सब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज किया जा सकता है, केस इन अपोजिशन यूज किया जाता है. हम उसको कई रूप में यूज करते हैं. और टाइप है कि हम उसको टाइप में उसको मॉडिफाई किए हैं या उसको क्लासीफाई किए हैं कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट. लेकिन हम उसके फंक्शन को देखें तो नाउन क्या क्या कर सकता है, नाउन किस रूप में काम कर सकता है. नाउन जो काम करता है वह एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, कंप्लीमेंट भी बन सकता है, अपोजिशन भी बन सकता है. यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम क्लास पढ़ना चाहेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. दैट्स ऑल. आज के लिए आपको इतना ही. आप सब ये पूरा तैयार करके आइए. आपसे नोट्स में चेक भी किया जाएगा और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं.